ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سیتاپور جنگل میں ایک ننھا گھوڑا رہتا تھا۔ وہ بہت شاطر اور نڈر تھا اور سارا دن جنگل میں ادھر سے ادھر دوڑتا رہتا تھا۔ وہ اس پورے جنگل کو اپنا گھر سمجھتا تھا اور اپنی مرضی سے گھاس کھاتا اور پھر تھک کر کہیں جا کر سو جاتا تھا۔ ایک بار ایک شیر نے گھوڑے کو گھیر لیا۔ وہ شیر ننھے گھوڑے کا شکار کرنا چاہتا تھا اور وہ گھوڑا بہت تیز اور پھرتیلا تھا۔ وہ شیر کو چکمہ دے کر بھاگ گیا۔ شیر بھی گھوڑے کے پیچھے بھاگنے لگا۔ تھوڑی دور جا کر ایک جگہ دلدل آئی۔ گھوڑے نے چھلانگ لگا کر اس دلدل کو پار کر لیا، لیکن شیر نے جیسے ہی چھلانگ لگائی وہ دلدل میں پھنس گیا۔ شیر نے اس دلدل سے نکلنے کی بہت کوشش کی مگر وہ ناکام رہا۔ شیر کی حالت دیکھ کر ننھا گھوڑا ہنستے ہوئے بولا، ارے بادشاہ سلامت، مجھے پکڑنا بہت مشکل ہے، اس لیے آئندہ مجھے پکڑنے کی ناکام کوشش نہ ہی کرے تو بہتر ہوگا، ورنہ آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ پھر شیر کو دلدل میں چھوڑ کر گھوڑا وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دن کی بات ہے کہ وہ ننھا گھوڑا مزے سے جنگل میں گھاس چار رہا تھا کہ وہاں سے ایک بھیڑیا گزرتا ہے۔ ننھے گھوڑے کو دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ وہ بھیڑیا خود سے بولا، واہ کتنا سندر گھوڑا ہے، اگر میں اس کا شکار کر لوں تو کم از کم کچھ عرصے تک تو میری موج ہی موج ہوگی۔ وہ بھیڑیا کچھ سوچ کر ننھے گھوڑے پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن ننھا گھوڑا اسی سمے بھیڑیے کو دیکھ لیتا ہے اور فوراً وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ بھیڑیا اپنا شکار بھاگتے دیکھ کر حیران و پریشان رہ جاتا ہے، تو وہ خود سے کہتا ہے، یہ گھوڑا تو بہت پھرتیلا اور چالاک نکلا، اس کا شکار کرنا آسان نہ ہوگا، لیکن اب میری بھی ضد ہے، میں اس کا شکار کر کے رہوں گا۔ اور پھر بھیڑیا وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس گھوڑے کو اپنا شکار بنانے کی سوچ وچار شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن اچانک ایک چھوٹا ہرن ہری ہری گھاس کی تلاش میں سیتاپور جنگل میں آ گیا۔ وہاں ہری ہری تازہ گھاس کو دیکھ کر وہ خوش ہو گیا اور وہ خود سے بولا، واہ کتنی مزے کی گھاس ہے، یہ جنگل کتنا سندر ہے، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، اب یہی جنگل میرا مستقل ٹھکانہ ہے۔ چھوٹے ہرن کی یہ باتیں تھوڑی دور گھاس چرتا ننھا گھوڑا سن کر جلدی سے ہرن کے پاس آ گیا۔ ارے او ہرن، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ علاقہ تو میرا ہے، اگر تو اپنی خیر چاہتا ہے تو جلدی سے یہاں سے چلا جا، ورنہ تو مجھے جانتا نہیں، میں تیرا وہ حشر کروں گا کہ تو سدا یاد کرو گے۔ ننھے گھوڑے کی بات سن کر چھوٹا ہرن بولا، او ننھے گھوڑے، تم کسے ڈرا رہے ہو؟ لگتا ہے تم نے میرے نوکیلے سینگ دیکھے نہیں، یہ میں نے نمائش کے لیے تھوڑی نہ رکھے ہیں، میں تمہیں ان سے ایسا ماروں گا کہ جنگل کے سارے جانور تمہاری شکل بھی نہیں پہچان پائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں لڑنا شروع ہو گئے۔ کبھی ننھا گھوڑا ہرن کو ٹکر مار کر گرا دیتا تو کبھی گھوڑا ہرن پر حاوی ہو جاتا۔ اس طرح کافی دیر وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ جنگل کے باقی جانور بھی وہاں اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ اتنے میں بکری بولی، ارے یہ اتنا کیوں لڑ رہے ہیں، کوئی ان کو روکتا کیوں نہیں؟ بکری کی بات سن کر مرغی بولی،
अगर इनको रोकना ना गया तो ये एक दूसरे को मार डालेंगे। बकरी मासी, आप ही कुछ करो और इन दोनों को रोको। मुर्गी की बात सुनकर बकरी मासी आगे बढ़ी और उन दोनों के बीच आकर रुक गई और बोली, आखिरकार पता तो चले कि तुम दोनों के लड़ने की कारण क्या है। इतने में छोटा घोड़ा बोला, पता नहीं ये छोटा हिरन कहाँ से हमारे जंगल में आ गया और ऊपर से कहता है अब ये यहीं पे रहेगा। नन्हे घोड़े की बात सुनकर छोटा हिरन बोला, अरे मैं तो साथ वाले जंगल में रहता था, हमारे जंगल में हरी हरी घास खत्म हो गई है। मैं जब यहाँ इस जंगल में आया तो घास और पानी देखकर मैंने यहीं रहने का फैसला कर लिया। उन दोनों की बात सुनकर बकरी बोली, ये जंगल हम सबका है और कोई किसी को यहाँ रहने से मना नहीं कर सकता। बेहतर है तुम दोनों आपस में दोस्ती कर लो। बकरी की बात उन दोनों को समझ आ जाती है और वो एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं। नन्हा घोड़ा और छोटा हिरन दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक साथ रहते हैं। एक साथ घास खाते और जहाँ जाते इकट्ठे इकट्ठे जाते। एक दिन की बात है कि वो नन्हा घोड़ा दरख्त के नीचे आराम कर रहा था कि भेड़िए का वहाँ से गुज़र हुआ। जब उसने देखा कि नन्हा घोड़ा दरख्त के नीचे आराम कर रहा है तो वो जल्दी से खुद से बोला, अच्छा आज अच्छा मौका है, इसका शिकार कर लूँ। ये कहकर वो जल्दी से नन्हे घोड़े के पास आया और बोला, अब बता बच्चू, अब बचकर कहाँ जाएगा, आज तो मैं तुम्हें खा कर ही छोड़ूंगा। भेड़िए की बात सुनकर नन्हा घोड़ा बोला, अरे ओ भेड़िए, आज भी मुझे खाने का तेरा ख्वाब ही रहेगा। वो देख, सामने से मेरा दोस्त आ रहा है, वो तुम्हें अभी सीधा कर देगा। इतने में छोटा हिरन भी भेड़िए को देख लेता है और वो जल्दी से भेड़िए को टक्कर मारकर गिरा देता है। फिर वो दोनों मिलकर खूब भेड़िए की धुलाई करते हैं, यहाँ तक भेड़िया बेहाल होकर गिर जाता है। भेड़िए की ये हालत देखकर हिरन और घोड़ा वहाँ से चले जाते हैं। भेड़िया उन दोनों को साथ देखकर सोच में पड़ जाता है, ओह अच्छा, तो ये छोटा हिरन इस नन्हे घोड़े का दोस्त है। मैं ताकत से इनका मुकाबला नहीं कर सकता, अब मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। और फिर कुछ सोचकर वो मुतमईन हो गया और वहाँ से चला गया। इस तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं। फिर भेड़िया एक दिन छोटे हिरन के पास आता है। छोटा हिरन भेड़िए को देखकर चौकन्ना हो जाता है। छोटे हिरन को चौंकते हुए देखकर भेड़िया जल्दी से बोला, अरे मुझे गलत मत समझ, मैं तो तुम्हें ऐसे ही अकेला घास चरते देखकर तुम्हारे पास आ गया और सोचा तुमसे बातें कर लूं। छोटा हिरन जल्दी से बोला, तो फिर तुम क्यों यहाँ आए हो मेरे पास? क्या तुम फिर मुझसे मार खाना चाहते हो? भेड़िया बोला, नहीं नहीं भाई, मुझे अंदाज़ा हो गया कि तुम बहुत ताकतवर हो और तुम्हारे साथ मुकाबला करना मेरे बस की बात नहीं। और हाँ, मैं तुम्हारे दोस्त के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ तुम्हें। छोटा हिरन बोला, जल्दी बोलो, मेरे पास तुम्हारी फजूल बातें सुनने का वक्त नहीं है। भेड़िया बोला, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि नन्हा घोड़ा दोस्त नहीं बल्कि असल में वो तुम्हारा दुश्मन है और तुम खुद को ही देख लो, तुम हमेशा उसकी खातिर लड़ते हो जबकि वो तुम्हारी खातिर कुछ नहीं करता बल्कि अपने दोस्तों में तुम्हारी बुराइयां करता है और तुम्हें बुरा भला कहता है। हिरन बोला, बकवास बंद करो,
मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है। भेड़िया बोला, मुझे पता था तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन ये सब सच है। मैंने अपने कानों से सुना है कि वो नन्हा घोड़ा जल्द ही तुम्हें इस जंगल से निकाल कर दूसरे जंगल के शेर के हवाले कर देगा। हिरन बोला, ये तो क्या कह रहे हो? भेड़िया बोला, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ। अब ये तुम्हारे तक है, यकीन करते हो या नहीं करते हो। और वैसे भी तुम्हें तो देर हो रही है, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। ये कहकर भेड़िया खुद भी वहाँ से चल दिया। भेड़िए को जागता देखकर हिरन सोच में पड़ गया। फिर भेड़िया नन्हे घोड़े के पास जाता है और उसे भी ऐसे ही छोटे हिरन के खिलाफ भड़काता है। अरे नन्हे घोड़े, तुम्हारा दोस्त तो बहुत ही लालची है। आज मैंने उसे अपने दोस्त से बातें करते सुना। वो कह रहा था कि वो जल्द ही तुम्हें शेर के हाथों मरा देगा और तुम्हारी जगह राज करेगा। भेड़िए की बात सुनकर नन्हा घोड़ा बोला, भेड़िए, मैं तुम्हारी बातों पे आने वाला नहीं हूँ। मेरा दोस्त तो मेरी खातिर अपनी जान भी दे सकता है। बेहतर है तो जाकर किसी और को बेवकूफ़ बना। नन्हे घोड़े की बात सुनकर भेड़िया बोला, मेरा काम था तुम्हें खतरे से आगाह करना, आगे तुम्हारी मर्जी, यकीन करो या ना करो। ये कहकर वो वहाँ से चल दिया। इसी तरह भेड़िया वहाँ से चला गया और थोड़ी दूर जाकर झाड़ियों में छुप जाता है। नन्हे घोड़े के दिल में भी छोटे हिरन के खिलाफ शक पैदा हो जाता है और वो सोचता है, भेड़िया सच कह रहा होगा। भला किसी दूसरे जंगल से आकर वो छोटा हिरन क्यों कर मेरा मुखलिस दोस्त होगा। इससे पहले कि वो मुझे नुकसान पहुंचाए, मैं उसे सबक सिखा दूंगा कि उसने किससे पंगा लिया है। फिर वो कुछ सोचकर इंतज़ार करने लगा। इस तरह काफ़ी देर इंतज़ार के बाद भी जब छोटा हिरन ना आया तो नन्हे घोड़े को बहुत गुस्सा आया और वो खुद से बोला, अच्छा तो भेड़िया ठीक कह रहा था, मैं इसे अभी जाकर सबक सिखाता हूँ। ये कहकर वो छोटे हिरन की तरफ चल दिया। भेड़िया भी छुपते छुपाते छोटे नन्हे घोड़े का पीछा करने लगा। छोटे हिरन के पास पहुंचकर नन्हा घोड़ा बोला, ओह तो तुम यहाँ बैठे हो। खैर मुझे तुम्हारी हकीकत पता चल चुकी है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नन्हे घोड़े की बात सुनकर छोटा हिरन बोला, क्या कहा? तुम मुझे नहीं छोड़ेगा? ठहरो, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहकर वो दोनों लड़ने लग गए और इस तरह काफ़ी देर वो दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे। यहाँ तक वो आखिर में दोनों गिरकर मर गए। इतने में भेड़िया भी वहाँ आ गया और उन दोनों को खाने लगा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दूसरों की बातों में आकर हमें अपने दोस्तों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए।